نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے دادا ارشاد فرماتے ہیں میرے دل کا خیال آمینہ کے گھر کی طرف ہے، اور سرکار کی ولادت باسعادت ہونے والی اللہ کے نبی کریم کے دادا ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی آمینہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، آمینہ کے گھر مصطفیٰ کی ولادت باسعادت ہوئی، فرمایا میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا وہ کعبہ آمینہ کے گھر کی طرف سجدے میں جھک جاتا ہے، اور ایمان والے اور نبی دنیا میں آ رہا ہے، اللہ کا محبوب دنیا میں آ رہا ہے، اور سر کے اوپر باپ کا سایہ نہیں ہے، اور باپ کا سایہ نہ ہو اور بیٹے کا نام کوئی نہیں لیتا ہے، اور یہ اللہ انتظام کرنے والا ہے، اور نبی دنیا میں آ رہا ہے، آمینہ کے گھر کی طرف کعبۃ اللہ سجدے کرتا ہے۔ نبی کریم کے دادا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں یہ کعبۃ اللہ آمینہ کے گھر کی طرف سجدے میں جھک جاتا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا کعبے کے اندر کوئی نہیں، کعبے کے اندر کوئی نہیں، فرمایا اس وقت میں کعبے کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک کعبے کے اندر سے جوف کعبہ سے کعبہ کے اندر سے آواز آتی ہے ولد المصطفی المختار، اللہ کی ساری خدائی کے مالک محمد دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ ایمان والے آج تو محفل میں بیٹھا مصطفیٰ کے میلاد کی محفل سجا کے بیٹھا، احمد مصطفیٰ کے نعرے لگاتا ہے، اور یہ نعرہ سب سے پہلے نبی کی آمد پہ لگا رہا ہے، تو اللہ کا گھر کعبۃ اللہ آمد کے نعرے لگاتا چلا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، سارے دوست بھرپور آواز میں نعرے کا جواب دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہم اپنے نبی کے آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ۔ ہمارے محترم انہوں نے نعرہ لگایا، آپ سے تاکید بھی کی، محبت سے جواب دیجیے۔ بہت سارے چہرے ایسے بیٹھے ہیں جو جانتے ہیں نعرہ لگائیں تو نعرے کا جواب تو کم از کم میری مرضی کا دیں۔ صرف ایک بات بتائیے، جب سرکار کی ولادت ہوئی کیا کعبے میں 360 بت نہیں تھے؟ تھے، کعبہ ناپاک تھا بتوں سے۔ نبی کی آمد کے نعرے کعبے نے لگائے ہیں، آج کعبے کی طرف کوئی پاؤں نہیں کرتا ہے۔ یہ عزت اللہ نے کیسے دی؟ جو نبی کے میلاد کی خوشی کرتا ہے اللہ اسے عزتیں دے دی، کیا ہے؟ ذرا محبت سے آمد مصطفیٰ۔ نہیں، ابھی بھی نہیں۔ ایمان والے اگر کعبے کو اللہ اتنی عزت دے سکتا ہے تو تو نبی کا غلام ہے، نبی کے نام کے نعرے لگا صحیح، اور تجھے کچھ اور ملے نہ ملے، ہو سکتا ہے کوئی محبت والا ایسا ہو اور نبی کے نام کے نعرے لگائے، رات بستر پر لیٹے آنکھیں بند کرے، وہ محبت کرنے والا نبی سامنے آ جائے۔ ذرا محبت سے آمد مصطفیٰ۔ آپ خود بتائیے کیا یہ دیوانوں والا نعرہ تھا؟ ذرا اور محبت سے آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں نبی کریم کی ولادت کا وقت قریب تھا، سرکار کی ولادت ہونے والی، اللہ نے جبریل کو بلایا، فرمایا جبریل مولا حاضر ہو، حکم کیا ہے؟ فرمایا جبریل جاؤ جنت سے 3 نور کے جھنڈے لے لو، ایک جھنڈا مشرق میں لگا دو، دوسرا مغرب میں لگا دو، یا اللہ جو تیرا حکم ہے۔ اور جھنڈا مشرق میں لگ گیا، مغرب میں لگ گیا، اور مشرق اور مغرب کا جھنڈا کیوں لگایا گیا؟ اور ساری کائنات کو پتا چل جائے، اور جو نبی دنیا میں آ رہا ہے اللہ نے اسے ساری کائنات کا مالک بنایا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا جبریل اور جاؤ تیسرا نور کا جھنڈا لے جاؤ، کعبے کی چھت پر لگا دو، اور یا اللہ تیرے کام ہے، تیری حکمتیں نرالی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی معاملہ کیا ہے، اور اتنا تو بتا دے، اور کعبے میں 360 بت نصب ہے، بتوں کے اوپر نور کا جھنڈا نہیں لگتا ہے، اور کعبے کو جھنڈا نور کا کیوں ملا؟ اور مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا جبریل میرے نبی کی ولادت ہوگی اور سب سے پہلے آمد کے نعرے لگائے گا، یہ کعبۃ اللہ نعرے لگائے گا، اور جو کوئی آج آمد مصطفیٰ کے نعرے لگاتا ہے اور جبریل نور کا جھنڈا اس کے گھر پر بھی لگاتا ہے۔ اللہ
सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है। वो अल्लाह के नबी रहमत बनकर आए, सरकार दुनिया में रहमत बनकर आए। काबातुल्लाह का ये मंजर देखते हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप घर पहुंचे, हजरत आमीना के घर पहुंचे। आमीना के पास जाके देखूं तो सही मामला क्या है। ये वो नूर में लिपटा हुआ, नूर के कपड़ों में लिपटा हुआ, नूर बखेरता हुआ बच्चा नजर आता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सीने से लगाया, गोद में उठाया। अब नबी करीम की अम्मा हजरत आमीना फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, और जब सरकार की विलादत बासआदत हुई मैंने देखा आसमान से इतना नूर नाजिल होता है। नबी की विलादत हुई, आसमान से इतना नूर नाजिल हुआ, फरमाया मशरिक और मगरिब के अंदर सारी कायनात अल्लाह के नूर से भर जाती है। फरमाया मुस्तफा की विलादत हुई, खरज मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकलता है। फरअयतु बिही कसूर शाम, मैं उस नूर की रोशनी में शाम के महल्लात देख लेती हूँ। ईमान वाले, वो नबियों के सरदार है, कायनात में तशरीफ लाए, नूर बखेरता हुआ आता है और नबी से मोहब्बत करने वाला कहता है वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया, मिली राहत गुलामों को, यतीमों को करार आया, हुई अनवार की बारिश, कदम रखे मोहम्मद ने, गोया ज़मीं को चूमे अर्शे मौला बार बार। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आदमी नारा लगाए, आवाज ऊंची हो चाहे साउंड जितना भी हो, और नबी के इतने सैकड़ों दीवाने जवाब दे तो आवाज नीची रह जाए। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की विलादत बासआदत हुई, अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए। अब अरब का दस्तूर है अपने बच्चों को, अपनी औलाद को अच्छी परवरिश के लिए शहर से बाहर भेजा जाता है। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप इरशाद फरमाती हैं, मैं अपने काफिले वालों के साथ घर से निकली, कबीले वालों के साथ निकली। फरमाया मेरे पास एक सवारी है, सवारी कमजोर है, चला नहीं जाता उससे, कमजोर सवारी उससे चला नहीं जाता। फरमाती हैं वो सवारी की वजह से पूरा काफिला परेशान है। काफिले वाले कहते हलीमा कौन सी सवारी ले आई, इसकी वजह से हम परेशान हैं, न तुझे छोड़ के जा सकते अकेली को, साथ तू चल नहीं सकती। हजरत हलीमा कहती जैसे तैसे करके हम मक्का पहुंची, मेरी सवारी कमजोर, मैं पीछे रह गई, बाकी औरतें मक्का पहले पहुंच गई। दीगर औरतों के घरों के अमीर बच्चों को जाके ले लिया, जिनके वालिदैन थे बच्चों को गोद में ले लिया। इस घर में जाए, आमीना के घर जाए, जो भी दाई जाए, जाके पूछे इस बच्चे का बाप कौन है, वो तो दुनिया से चला गया। औरतें कहें इसका बाप नहीं, हमें पैसे कौन देगा। हजरत हलीमा कहती मेरी गोद खाली रह गई, बच्चा मिला कोई नहीं। रात अपने शौहर के पास आई, आके कहने लगी सुबह वापसी है, काफिले ने वापस जाना है और मेरी गोद खाली, बच्चा कोई मिला नहीं, और ये एक यतीम बच्चा है, खाली जाती अच्छी नहीं लगती, क्या इसे गोद ले लूं। शौहर कहने लगा तेरी मर्जी है, पहले घर में फाके हैं, पहले घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, और एक यतीम बच्चा जिसके पैसे भी नहीं मिलेंगे गोद ले लेगी, इसका खर्चा कहाँ से पूरा होगा, इसके दूध का इंतजाम कहाँ से होगा, लेकिन तेरा जी चाहता है ले ले। हजरत हलीमा कहती सुबह अपने जहन में अजीब से ख्यालात लिए, जिसे हम अपनी जुबान में कहते हैं डबल माइंडेड होकर हजरत हलीमा आमीना के घर गई और जाके अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, मैं बच्चे को गोद में लेना चाहती हूँ। हजरत आमीना ने मुस्कुराते हुए मुस्तफा कपड़े में लिपटे हुए हलीमा की गोद में डाल दिए। हजरत हलीमा कहती है मैंने जैसे सरकार के चेहरे से कपड़ा उठाया, अल्लाह के नबी ने एक निगाह मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा, फरमाया सरकार की दोनों आंखों के दरमियान से नूर निकलकर आसमान तक जाता है। हलीमा इतना नूरानी चेहरा देखकर वहीं पे फिदा होती चली गई। हलीमा
कहती मैंने मुस्तफ़ा को उठा के सीने से लगाया, अल्लाह के नबी को सीने से लगाया और मेरा दिल बाग बाग हो गया और भूख खत्म हो गई, प्यास खत्म हो गई, परेशानी खत्म हो गई। अब हलीमा कहती मैंने आमीना से इजाजत ली, काफिले में जाने से पहले मेरे दिल में ख्याल आया ये अल्लाह का घर है, बरकत वाला, रहमत वाला है, लोग इसका हज करते, तवाफ करते हैं, मैं भी बच्चे को साथ लेके तवाफ कर लूं। हजरत हलीमा कहती मैं काबे का तवाफ करने गई, मुस्तफ़ा को गोद में उठाया हुआ है और जैसे ही हजरे अस्वद के पास पहुंची, हमारी आज की इस महफिल में मास्टर तनवीर साहब बैठे, पूछिए उनसे अभी उम्रा करके आए हैं, हजरे अस्वद का बोसा लेना आसान काम नहीं, बड़ी सआदत की बात है और जिसे मिल जाती है। हलीमा फरमाती मुस्तफ़ा को गोद में उठा के मैं हजरे अस्वद के पास गई, नबी का चेहरा पकड़ा, सर पकड़ा कि हजरे अस्वद के अंदर दाखिल करूं, बच्चे के लब हजरे अस्वद से लग जाए। हलीमा कहती वो काबे का पत्थर हजरे अस्वद अपनी जगह से निकलकर और मुस्तफ़ा के लबों से चिपट गया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, अज़मत और शान मुस्तफ़ा। आज कोई अल्लाह के घर का तवाफ करे, कोई हज उम्रा करने के लिए जाए, अल्लाह हर अहले ईमान को तौफीक दे। वो हजरे अस्वद का बोसा लेना मोमिन शहादत समझता है और बड़ी किस्मत की बात है, बड़ी शान की बात है। और लेकिन हजरे अस्वद तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाए और तेरी बेताबी नजर आती है और तू नबी से लिपटने, नबी के लबों से लिपटने को खुद बेताब नजर आ रहा है। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, हम अपने नबी के दीवाने, हम अपने नबी के दीवाने, नारा हैदरी। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप इरशाद फरमाती हैं अब मैंने तवाफ मुकम्मल किया, काफिला तैयार है, काफिला चल पड़ा, मैं अपनी उसी कमजोर सवारी पे बैठी जो चल नहीं सकती थी, काफिले को तंग करती आई थी, काफिला बार बार परेशान था। फरमाती जैसे ही मैं सवारी के ऊपर बैठी, न जाने कहां से उसमें ताकत आ गई और चलना दौड़ना तो दूर की बात है, वो सवारी गोया उड़ती हुई जा रही है और काफिला सारा पीछे रह गया, काफिला पीछे रह गया। हलीमा आगे बढ़ी, औरतें पुकार के कहने लगी ओ हलीमा, और कहीं से सवारी बदल लाई है, मक्के से किसी अरबी सरदार की सवारी चुरा लाई है। हलीमा मुस्कुरा के कहती देखती नहीं, आज सवारी नहीं बदली, ऊपर वाला सवार बदल गया। अल्लाह ये वो सवार है और जिसकी सवारी बनने के लिए अल्लाह का अर्श बेताब नजर आया करता है। सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा फरमाती मैं घर पहुंची, मेरे घर से कस्तूरी की खुशबू आना शुरू हो गई, मेरे घर से कस्तूरी की खुशबू आना शुरू हो गई। सीमा फरमाती हमारे घर में बकरी थी, दूध नहीं देती थी, कमजोर थी, खाने को कुछ था नहीं, बच्चों के खाने के लिए नहीं था, बकरी को कहां से। जैसे ही अल्लाह के नबी ने हलीमा के घर में पांव रखा, सरकार दाखिल हुए, हलीमा फरमाती वो बकरी पांव फैला के खड़ी हो गई, उसने आवाजें देनी शुरू कर दी। मेरे शौहर ने देखा बकरी की तरफ, इसको क्या हो गया? कहती हैं मेरे शौहर ने कहा हलीमा अंदर से बर्तन दो, बकरी के थनों में दूध नजर आ रहा है। जो बकरी दूध न देती थी, थनों में दूध नजर आ रहा है। अब बकरी का दूध कितना होता है? बहुत अच्छी नस्ल की हो, किलो 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो हो जाएगा, इससे ज्यादा तो दूध बकरी नहीं देती, छोटा जानवर है। हलीमा फरमाती है मेरे शौहर ने दूध दोहा, घर का एक बर्तन भर गया। शौहर ने कहा दूध अभी बाकी है, बर्तन दो। दूसरा बर्तन दिया, दूध से भर गया। तीसरा बर्तन दिया, दूध से भर गया। घर के कहती एक एक करके सारे बर्तन देती गई और सारे बर्तन दूध से भर जाते, दूध अभी बाकी नजर आ रहा है। ईमान वालों, ये अल्लाह के नबी दुनिया को बता रहे हैं और दुनिया वालों ये मत समझना हलीमा मुस्तफा की परवरिश करती रही है और हलीमा तो फाकों की मारी हुई थी और मुस्तफा को लेके घर आई है। अल्लाह ने दूध की नहरें जारी कर दी है और ये नबी की जात है, हलीमा के पूरे कुंबे की परवरिश करते। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप इरशाद फरमाती है
फरमाया मेरे घर से कस्तूरी की खुशबू आई, उस बस्ती में जितने घर थे हर घर से कस्तूरी की खुशबू आना शुरू हो गई। कस्तूरी ले आइए, असल कस्तूरी कहीं से ले आइए, उसको शीशी में डाल के उसका ढकना खोल के कमरे में रख दीजिए, कमरा पूरा खुशबू से भर जाता है। साथ वाले कमरे में शायद खुशबू ना जाए, चली भी जाए, खिड़की रोशनदान से आ जाए, घर में खुशबू आ जाएगी, बाहर सहन में नहीं होगी, बाहर गली में खुशबू नहीं होगी। ये ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा है। हलीमा के घर कदम रंजा होते हैं, तशरीफ फरमा होते हैं। हलीमा के घर से नहीं, बस्ती के हर हर घर से कस्तूरी की खुशबू आना शुरू हो जाती है। इमाम अहले सुन्नत की रूह मचलती है और वो अर्ज करते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं और जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। हजरत हलीमा इरशाद फरमाती बरकतें जाहिर होना शुरू हो गई। हम ये तज़किरे सुनते हैं मुहद्दिसीन से, हदीस की किताबों में है, नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम आपका एक गुलाम बीमार हो गया, बोसीरी नाम है, कसीदा बुर्दा लिखा, रात ख्वाब में अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, दस्ते मुबारक फेरा, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी, जिस्म पे शिफा मिल गई। तो ये अब की बात नहीं, सरकार की ज़ाहरी हयात तय्यबा की ऐलान नबुव्वत की बात नहीं। हजरत हलीमा फरमाती मेरी बस्ती में, मेरे घर में, मेरे पूरे इलाके में कोई भी बीमार होता उसे लाया जाता, इंसान होता, जानवर होता, लाया जाता। नबी करीम का बचपना है, फरमाया सरकार का हाथ पकड़ के बीमार के जिस्म पर रखते हैं और नबी के हाथों के सदके अल्लाह बीमार को शिफा अता फरमा दिया करता है। हजरत हलीमा रदी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती है मैं नबी करीम को घर लेकर आई, फरमाया हमने चिराग जलाना छोड़ दिया, चिराग जलाना छोड़ दिया। चंद दिन गुजरे, औरतें आगे घर के दरवाजे पे दस्तक, हलीमा कहती मैंने दरवाजा खोला, सामने आस पड़ोस की औरतें आ गई। ओ हलीमा तुझे क्या हो गया, कहीं से कोई खजाना चुरा लिया, कोई लॉटरी निकल आई, कोई इनाम ले लिया, कोई खजाना निकल आया, और हुआ क्या है बताओ तो सही। वो औरतें कहने लगी हलीमा हमारे बागात तुझसे ज्यादा, हमारे जानवर तुझसे ज्यादा, हमारे पास मकानात तुझसे ज्यादा, माल और दौलत तुझसे ज्यादा। वो तू गरीब बीड़ी सी है, तू क्या करती, कौन सा खजाना मिल गया, सारी सारी रात तेरे घर में चिराग जलता रहता है और तेरे घर का चिराग बुझता नहीं। हम इतनी मालदार हो के फजूल खर्च नहीं है कि सारी रात दिया जलाई रखे। हलीमा मुस्कुरा के कहने लगी और जिस मोहम्मद को यतीम समझ के मक्के छोड़ आई थी और जब से मैं उसे घर लेके आई हूँ, रब्बे जुल जलाल की कसम हमने चिराग जलाना छोड़ दिया। फरमाया ये नबी के चेहरे की रोशनी है और जो सारी रात रोशनदान से बाहर तुम्हें नजर आती रहती है। ईमान वाले आ जा, तू मुस्तफ़ा का नाम लेना शुरू कर दे, नबी करीम का जिक्र करना शुरू कर दे, नबी से मोहब्बत करनी शुरू कर दे। वो वक़्त भी आएगा तू मोहब्बत से नबी का नाम लेगा और नबी करीम का नूर तेरे घर में जलवागर होता नजर आता चला जाएगा। वो लजपाल नबी, सारी कायनात के नबी, सारी कायनात को अता करने वाले नबी है। ईमान वाले गले में गुलामी मुस्तफ़ा का पटा सजा के, नबी की मोहब्बत को दिल में बसा के, एक इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा रोशन करके और जरा नाम मुस्तफ़ा लेके तो देखते ही और शायद तेरी जुबान से नाम बाद में निकलता है और गुंबद खजरा के मकी करम पहले फरमा दिया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर। हजरत हलीमा रदी अल्लाह तआला अन्हा आप इरशाद फरमाती हैं, फरमाया रात की तारीकी में चिराग तो हमने जलाना छोड़ दिया, कमरे में कोई चीज़ चाहिए, इंसान है रात को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, कोई बिस्तर चाहिए, कोई तकिया चाहिए, कोई लिहाफ चाहिए।
کوئی گلاس چاہیے، کوئی برتن چاہیے، پیاس لگ گئی اس کے لیے کوئی پانی کا برتن چاہیے۔ حلیمہ کہتی ہے اب ہم نے چراغ جلانا تو چھوڑ دیا تھا، کرتی کیا تھی؟ اللہ کے نبی کو گود میں اٹھا کے دوسرے کمرے میں لے کے جاتی، سرکار کے چہرے کی روشنی سے کمرہ جگمگ جگمگ کر اٹھتا تھا۔ ایمان والے آ تو صحیح، وہ نبی کریم کا نام لے کے دیکھ صحیح، اللہ کے نبی کو یاد کر کے دیکھ صحیح، مصطفیٰ کا ذکر کر کے دیکھ صحیح، اور گنبد خضرا سے وہ نور چمکے گا، اور حلیمہ کے گھر کو نور مصطفیٰ منور کرتا ہے، اور تو بھی نبی کو یاد کر کے دیکھ صحیح، آمینہ کے لال کا نور تیرے گھر کو بھی روشن کرنے کے لیے تیار نظر آ رہا ہے۔ ہم نے کبھی نبی سے محبت کی ہی نہیں، اور کبھی محبت سے مصطفیٰ کا نام لیا ہی نہیں۔ ایمان والے آ جا، اور کبھی رات کی تاریکی میں ذکر مصطفیٰ کر کے دیکھ صحیح، اور زبان پہ نبی کے نام کی نعتیں سجا کے دیکھ صحیح، اور نبی کریم پہ درود پاک کے ترانے سجا کے دیکھ صحیح، اور کسی طریقے سے بھی اور نبی کو یاد تو کر کے دیکھ صحیح۔ اور وہی ایک حسان بن ثابت ہے، اور جو بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ کے نبی حضرت حسان بن ثابت کو منبر بنا کر منبر کے اوپر بٹھا دیتے ہیں۔ ایمان والے نبی کا ذکر کرنا تیرا کام ہے، اور تجھے عزتیں دینا یہ مصطفیٰ کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، جو نبی سے محبت سبحان کرے، اللہ، نام مصطفیٰ محبت سے لے، وہ محروم نہیں رہتا۔ ہم نے کبھی محبت سے یاد کیا ہی نہیں، کبھی نام لیا ہی نہیں۔ ایمان والے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو محبت سے نام مصطفیٰ لے اور گنبد خضرا کے مکی کو خبر نہ ہو؟ تو اللہ کے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میرا امتی جب بھی محبت سے یاد کرتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی تو ہے وہ نور کے کاغذ پر لکھ کر لے جاتے ہیں، فرمایا میں اللہ کا نبی اپنے کانوں سے سنا کرتا ہوں۔ ایمان والے تو گھر بیٹھے ہی صحیح محبت سے یاد کر کے تو دیکھ صحیح، تو بستر پہ لیٹا ہوا، تیرے چہرے پہ کپڑا ہو، ساتھ اہلیہ سوئی ہو، بھائی سویا ہوا ہو، ابا لیٹا ہوا ہو، اور ساتھ کی چارپائی پہ کوئی لیٹا ہو، اسے خبر نہ ہو، تیری پلکوں پہ موتی سجے ہو، اور زبان پہ نام مصطفیٰ جاری ہو، اور ساتھ والی چارپائی والے کو پتہ نہ ہو، نبی لجپال کو خبر ہو جایا کرتی ہے۔ وہ اللہ کے نبی ہے، اور جو امتی محبت سے یاد کرتا ہے وہ اللہ کے نبی آگے بڑھ کے اس کی دستگیری فرما دیا کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف میں 1 2 4 نہیں، سینکڑوں بزرگ ایسے نظر آتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کو یاد کرتے رہے اللہ کے نبی آگے بڑھ کے جولی بھر دیا کرتے ہیں۔ کیا انعام ملتا ہے؟ ہم یہاں آئے بیٹھے نبی کی آمد کے نعرے لگا رہے، محبت سے ذکر کر رہے ہیں، اور دعا کرو یہ محبت سلامت رہے۔ اگر یہ نعمت سلامت رہ گئی، غلامی مصطفیٰ کا پٹا سلامت رہ گیا، تو مرتے وقت کوئی اور نعمت ملے نہ ملے، اللہ اپنے نبی کا دیدار عطا فرما دیا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کے زمانے کا ایک آدمی دنیا سے چلا گیا، مشہور تذکرہ آپ نے سنا ہے، علماء سے متعدد مرتبہ سنا۔ لوگوں نے کہا یہ بد کردار تھا، عمل اچھے نہ تھے، اسے عذاب قبر ہوگا، اس کی وجہ سے باقی قبرستان والوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ پاؤں میں رسی ڈالی، مرنے کے بعد اسے گھسیٹ کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ پھینک دیے، گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیے۔ اللہ نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی، فرمایا موسیٰ میرا ایک پیارا بندہ۔ اب اللہ کے فرمان پہ غور کیجئے، رب فرماتا ہے موسیٰ میرا ایک پیارا بندہ، تیری قوم کے لوگ غلطی سے اسے باہر پھینک کے آئے، جاؤ اسے اٹھاؤ، غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ پڑھا کے قبر میں اتارو۔ اللہ کا حکم آ گیا، حضرت موسیٰ گئے، لوگوں کو ساتھ لیا، موسیٰ گئے، دیکھا تو پہچان گئے، یہ آدمی تو بدبخت ہے، اس قوم کا نافرمان ہے، کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا۔ بعض کتب میں 200 سال کی زندگی ایک بھی نیکی نہیں، لیکن اللہ کا حکم تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھایا۔
अब एक लम्हे के लिए एक बात बताइए, वो किस नबी का उम्मती था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है। उम्मती के लिए इससे बड़ी सादत और क्या है? जिस नबी का कलमा पढ़ता है वो नबी जनाजे में खुद शरीक हो रहे हैं, वो नबी जनाजे में आ रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ाया, कब्र में उतारा। अब मूसा का दिल बेचैन है, ये बदबख्त था, ये बदकिरदार था, ये अमल अच्छे न थे। अल्लाह फरमाता है मेरा प्यारा बंदा है। मूसा अलैहिस्सलाम को है तूर पे चले गए, अर्ज की या अल्लाह तेरी हिकमत है, तू बेहतर जानता है, लेकिन ये तेरा प्यारा कैसे हो गया? अपनी हिकमत बता दे, रात से पर्दा उठा दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा ये बदबख्त था, बदकिरदार था, गुनहगार था, कभी फरमा बरदारी नहीं की, लेकिन एक दिन रात को ये घर गया, इसने तौरात खोली और तेरे ऊपर नाजिल होने वाली किताब खोली, सहीफा खोला। फरमाया उसके पहले सफ़े पर मेरे लजपाल नबी का नाम मोहम्मद लिखा था। इसने एक मर्तबा नाम को चूम के बोसा दिया है। फरमाया मैंने जिंदगी के गुनाह नहीं देखे और देखा है तो नाम मुस्तफा की इज्जत को। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। सुभान अल्लाह। ईमान वाले मूसा का उम्मती हो, 200 साल की जिंदगी नाफरमानी की हो, एक मर्तबा जिंदगी में मोहब्बत से मुस्तफ़ा का नाम लिया हो और जनाजे की बारी आए, अल्लाह के नबी जनाजे में खुद आ जाते हैं और तू आ तो सही, जरा झूम कर नबी की आमद के नारे तो लगा तो सही। और ये चंद दिन बाकी है, मिलाद मनाने की खुशी करके तो देख सही, और कभी अपने घर को सजा के देख सही, अपने दिल की दुनिया को आबाद करके देख सही, और बच्चों को बिठा के अहमद मुस्तफ़ा के नारे लगा के देख सही। हो सकता है किसी के दिल से मोहब्बत भरा जुमला निकले और कोई नबी का मोहब्बत से नाम ले, अल्लाह उसके सदके सबको नबी के दीदार की नेमत अता फरमाता है। आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत। वैसे मैं ऐसी बातें करता नहीं हूँ बयान में, मेरा तो हक बनता है कि जितने मैं ज़ोर से बयान कर रहा हूँ मुझे थकावट हो जाए, आपको सुन के ही हो रही है। ईमान वाले नाम मुस्तफ़ा है, मोहब्बत से ज़रा झूम के कहे आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा। जो नबी का मोहब्बत से नाम लेता रहता है वो महरूम नहीं रहता। अल्लाह के नबी लजपाली फरमाते, करम फरमाते हैं। ये हमारे सरजमीन हिंदुस्तान के दिल्ली के बुजुर्ग हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, आपका वक्त विसाल करीब आया, वसीयत फरमा दी मेरे जनाजे में मुल्तान वाले शाहरुख ने आलम मुल्तानी को शरीक करना। हजरत का इंतकाल हुआ, शाहरुख ने आलम मुल्तानी दिल्ली में पहुंचे और जाके हजरत को गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा पढ़ा के कब्र में उतारा। अल्लाह वाला है, अल्लाह का प्यारा बंदा है, रब का वली है और दिल की आंखें सलामत है और नबी का दीवाना है। कब्र में उतार के बाहर आए, आंखों से आंसू जारी है, इतना रोए के रो रो के दाढ़ी आंसू से तर हो गई और आंसुओं के कतरे नीचे गिरने लगे। इतना रोए रो रो के बेहोश होके गिर गए और लोग आगे बढ़े, हजरत के चेहरे पे पानी डाला, होश आए, आंखें खोली, फरमाया क्या कर रहे हो हजरत, शायद आपको गर्मी लग गई। एक मुरीद पास खड़ा था, राजदार खड़ा था, कहने लगा हजरत एक मसला बता दीजिए। फरमाया पूछो, क्या पूछते हो? और हजरत आप दिल की आंखों वाले साहिबे बसीरत बुजुर्ग हैं, आप जब चाहेंगे इनसे मुलाकात कर लेंगे, बातें कर लेंगे, इनकी ज़ियारत हो जाएगी। और हमारे हजरत पिछड़े तो हमसे है, आपसे तो कोई पर्दा नहीं है। फिर आपने इतना गम किया, रो रो के बेहोश हो गए। फरमाया अरे अकल के अंधो, एक मंजर मैंने देखा वो तुमने नहीं देखा। और जी हजरत आपने क्या देखा? फरमाया मैं निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के वजूद को लेकर और जैसे ही कब्र में उतरता हूँ मैं देख के हैरान रह गया, आगे नबियों के इमाम कब्र में खड़े हैं और इसके वजूद को वसूल कर रहे हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। गुलामी रसूल में गुलामी रसूल में नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। नबी का जो गुलाम है, नबी का जो गुलाम है जनाब साहबजादा इब्राहिम सुल्तानी साहब,
माशाअल्लाह आखिर में इन्होंने एक बात माशाअल्लाह। कही है, हम सब की इज्जत नबी के नाम में ही है। मेरे नाम का नारा लगाएंगे कुछ नहीं मिलेगा, सच्ची बात है। नबी के नाम का नारा लगाएं, गुंबद खजरा से जवाब भी आएगा, रब की रहमतें भी मिलेंगी। सुभान अल्लाह। ईमान वाले गौर तो कर सही, नबी का दीवाना हो, दुनिया से जाए, अल्लाह के नबी कब्र के अंदर तशरीफ ले आते हैं, उसके वजूद को अपने हाथों से कब्र में उतारते हैं। और तूने नबी का बन के देखा ही नहीं, तो हम 2 मिनट के लिए आके बैठ जाए और मिलादे पाक की महफिल में आके बैठ के नबी का जिक्र कर ले, नारे लगा ले, और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। और पूछो नबी करीम की अम्मा हजरत आमिना फरमाती है रदी अल्लाह ताला अन्हा, फरमाया जैसे ही बच्चे की विलादत हुई, अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए, बच्चे के लब हिल रहे थे। फरमाती मैंने कान नजदीक किया, और लब क्यों हिल रहे हैं? फरमाया जैसे कान नजदीक किया, मुस्तफा के लबों से आवाज आ रही थी, रब्बे उम्मती मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे, उम्मत को माफ कर दे, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, और तेरा नबी दुनिया में आए, आते हुए तुझे याद कर रहा है। आजा और जिंदगी में सबसे पहले और जिक्र मुस्तफा को आदत बना ले। वो अल्लाह का नबी आगे बढ़ के सीने से लगाने को तैयार नजर आ रहा है। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दीदार की आमद, तोड़ने की आमद, मक्की की आमद, बदरी की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह जी। एक गोलड़े का ताजदार, जिंदगी भर मोहब्बत से नबी का नाम लेते रहे, मुस्तफ़ा को याद करते रहे, नबी को याद करते रहे। क्या कहते हैं? और नबी का मोहब्बत से जिक्र करते क्या कहते हैं? मुख चंद बदर शाशानी, मथ चमके लाट नुरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर अखी हिन मद भरी। इस सूरत नू मैं जाना खा, इस सूरत नू मैं जाना खा, जाना खा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बढ़िया। यह सूरत शाला पेश नजर रहे वक्त नजाते रोज़े हशर, विच कब्र ते जद होसी पुल थी गुजर, सब खोटियां थी सड़तद खरियां। और नबी का दीवाना मोहब्बत से मुस्तफा को याद करता है। हज के लिए जा रहे थे, वादी हमरा में रुकते हैं, और नबी की मोहब्बत दिल में जोश मारती है। अर्ज करते आका जरा अपने चेहरे से पर्दा तो उठा दीजिए, अपना दीदार अता कर दीजिए, और यमनी चादर तो सिरकाइए। अल्लाह के नबी तशरीफ लाते हैं, और गोलड़े के ताजदार है, मुस्तफा के चेहरे को देखते हैं, और देख के पुकार के कहते हैं सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका। किथे मेहरे अली, किथे तेरी सरा, मुश्ताक अखी किथे जा अड़ी। अल्लाह ईमान वाले नबी को याद करना तेरा काम है, अपना हुस्न मुस्तफ़ा दिखाना ये लजपाल नबी का काम नजर आया करता है। आइए आज किस बाबरकत महफिल पाक में अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। जहाँ जिंदगी में और बहुत कुछ मांगते हैं, ये भी दुआ मांगे, या अल्लाह हम तुझसे ये भी मांगते हैं कि जिंदगी भर नबी का गुलाम रहने की तौफीक अता कर दे। जिसे ये नेमत मिल जाती है, अल्लाह वहदहू ला शरीक उसके बिगड़े मुकद्दर सवार देता है। अल्लाह वहदहू ला शरीक हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहबाब ज़िलक़ार महफ़िल और माशाअल्लाह अहबाब ने बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत तरीद के साथ नारों से इस्तक़बाल किया। अल्लाह तमाम अहबाब की इस हाज़री, इस मोहब्बत, इस तरीद और खलूस